Good morning, students. So, in this video, we will discuss about the transgenic animals. Transgenic animals kono, what are their advantages? Their advantages kono, atavu kotre kotre ame use kari pariba. Okay. So, what are transgenic animals? The animals which carry foreign gene is called transgenic animal. ଗୋଟେ particular animal ରହିଲା ସେ animal ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ organism ର gene କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି introduce କରାଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହବ transgenic animal. So what are the steps of forming a transgenic animals? ତ transgenic animal formation କରିପାରିବ ତ first ହେଲା extraction of gene of interest. एक्सट्राक्शन ऑफ जीन जो पर्टिकुलर जीन तुमको दरकार अच्छे से जीन टाको एक्सट्राक्ट करबो को भी गोटे ऑर्गेनिज्म रो देन सेकंड हला कोन कटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग इन वेक्टर देन कोन करा ताको कट करबो स्पेसिफिक जगह कट कराला देन ताको ने इंट्रोड्यूस कराबो कोतरे वेक्टर रे इंट्रोड्यूस कराला then the vector introduce then there are transmission into host तो host को नहीं कौन कराबो ट्रांसफर कराबो दीटा प्रोसेस रे आइदर वेक्टर यूज करके हो और बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन जदि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होची देन एटी कौन करा ओनली कट कराला ताको नहीं डायरेक्टली ट्रांसमिट कराबो इनसाइड द होस्ट सेल बट जदि वेक्टर यूज होची देन ताको कौन कराबो फर्स्ट लाइगेट कराबो वेक्टर रे देन वेक्टर को नहीं कौन कराबो ट्रांसफर करावा इनसाइड द होस्ट देन ताको कौन करावा तार स्टडी करावे और ताको मेंटेन करावे मेंटेनेंस ऑफ that particular gene inside the host. So these are the steps of forming a transgenic animal or producing a transgenic organism. Okay, so what are the advantages of transgenic animals? What transgenic animal formation कले तार advantages कौन कौन था कौन कौन help है पर हमको The first advantage is forming biological products. Transgenic animal की यूज करके हमें different biological products किसी ଗୋଟେ particular protein को भी हो कि किसी ଗୋଟେ particular protein है कि किसी ଗୋଟେ particular product को formation कराया पड़ो. For example, there is a enzyme or there is a protein called alpha-1 antitrypsin. So this particular protein is used to cure the disease emphysema. The emphysema disease को cure करा पे को protein use हुए alpha-1 antitrypsin. Okay. So कौन कराला the alpha-1 antitrypsin synthesizing gene को that particular gene is extracted and introduced in sheep. ताको नहीं कौन कराला sheep रे introduce कराला so that this transgenic sheep now produce milk that contain this protein alpha-1 antitrypsin and this milk can be used to treat emphysema. So this is the example of forming biological product by using transgenic animal. This particular protein alpha-1 antitrypsin is used to cure the disease emphysema. The alpha-1 antitrypsin synthesizing gene को कौन कराला extract कराला and that is transmitted into sheep. तो कौन कराला कि transfer कराला sheep रे. Now this transgenic sheep forms milk that produce milk that contain this particular protein called alpha-1 antitrypsin. अब milk को कौन करा पारे use करा पारे to cure emphysema. Then the second example is a human protein called alpha-lactalbumin. Alpha-lactalbumin is a human protein or human milk protein. So this was introduced in cow or this alpha-lactalbumin synthesizing gene is transferred into cow. That cow is the first transgenic animal or the first transgenic cow. Her name was Rosie. The first transgenic cow is Rosie. तो एक cow रे कौन करायतला ट्रांसफर करायतला cow को अल्फा लैक्टलबुमिन सिंथेसाइजिंग जीन ए जीन को ट्रांसफर करायतला सो दैट कौन बा ये जो मिल्क प्रोडक्शन करबो से मिल्क रे कौन थिबो ह्यूमन प्रोटीन फॉर्मेशन ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट थिबो तो ए मिल्क को यूज करावे कम बाय
इफ देयर इज ए बेबी जदि कौन गोटे बेबी जस्ट बोर्न हो कौन तार इफ द मदर इज अनेबल टू लैक्टेट जदि मदरटा कौन अच्छे अनेबल टू फीड ताको फीड कराया अनेबल अच्छे कि तार मार डेथ हो जाऊँगी देन से केस रे कौन कराब ए मिल्क को यूज कराई पारे एज ए रिप्लेसमेंट नॉर्मली कौन हुए काउ मिल्क को रिप्लेस करावे बट काउस मिल्क डज नॉट कंटेन ह्यूमन प्रोटीन काउ मिल्क रे ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट नथिबो आ बाकी जहाँ प्रोटीन अच्छे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन प्रोटीन सो एटी कौन कराला ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन को इंट्रोड्यूस कराला काउ रे दैट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कॉल्ड रोजी तो हेटी कौन कराला ताको ने इंट्रोड्यूस कराला सो दैट दिस काउस मिल्क कंटेन ए ह्यूमन प्रोटीन एंड दैट इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क so these are the examples of using transgenic animals to form biological products what is the second advantage la kona to study normal physiology and development normal physiology and developments kona how genes function गोटे पर्टिकुलर जीन ना कैरेक्टर और गोटे पर्टिकुलर जीन ना फंक्शन को जानिया कौन करावे ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करावे तो इफ गोटे पर्टिकुलर जीन अच्छी से कौन कैरेक्टर अच्छी तार जानिया जदि कौन कराव से जीन को लेकिन ट्रांसफर करावे दैट पर्टिकुलर जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एनिमल तो गोटे एनिमल इंट्रोड्यूस करावे नाउ से एनिमल कौन कराव को बिहेवियर को कैरेक्टर चेंज होची और को कैरेक्टर डेवलप करावे ताको स्टडी करावे देन कौन करावे गोटे जीन न कौन कैरेक्टर अच्छी सेटा को आइडेंटिफाई करावे तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट रे कौन करावे हाउ जीन्स रिएक्ट और हाउ जीन्स फंक्शन तो से फंक्शन को स्टडी करावे यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स देन आसो कौन थर्ड एडवांटेज है कौन स्टडी ऑफ डिजीज गोटे पर्टिकुलर डिजीज को स्टडी करने ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करावे डिजीज को स्टडी करने कौन है तो डिजीज क्रिएटिंग जीन तो फर्स्ट कौन करावे जो जिनटा डिजीज क्रिएट करुच्ची से जीन को ट्रांसफर करावे कोथरे एनिमल ले ट्रांसफर कराबो देन तुमको देन तापाई जो कौन दरकार जो मेडिसिन दरकार और तुम जाको जो थेरापी कराया चाहो से मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करावे से पर्टिकुलर एनिमल ले तो फास्ट कौन करावे स्टडी करावे से डिजीज क्रिएटिंग जीन को से डिजीज क्रिएटिंग जीनटा को सिम्पटम देखौची और को जिनस क्रिएट करची फर्स्ट ताको स्टडी करावे देन ताको रिमूव कराया और ताको क्योर कराया जो जो पॉसिबल ट्रीटमेंट दरकार से ट्रीटमेंटा दिया हुए से पर्टिकुलर एनिमल देन कौन करावे सेटा को नेकी ह्यूमन ऊपर इंट्रोड्यूस करावे तो डिजीज को स्टडी कराया भी यूज करावे का को ट्रांसजेनिक एनिमल को थर्ड आसला कौन वैक्सीन सेफ्टी मीन्स कौन जो गोटे पर्टिकुलर वैक्सीन तैयारी होची से वैक्सीन को कौन करावे फर्स्ट यूज करावे एनिमल ऊपर गोटे ट्रांसजेनिक एनिमल है कि गोटे एनिमल ऊपर फर्स्ट ताको इंट्रोड्यूस करावे ताको स्टडी करावे कि साइड इफेक्ट कौन कौन अच्छी ना नहीं से इफेक्टिव होची ना नहीं तापर नहीं कि ताको इंट्रोड्यूस करावे ह्यूमन सो द ट्रांसजेनिक mouse are used to test पोलियो वैक्सीन तो पोलियो वैक्सीन को टेस्ट कराया यूज करावे कौन ट्रांसजेनिक माउस को यूज करावे देन आसला कौन केमिकल सेफ्टी और केमिकल टॉक्सिसिटी गोटे केमिकल मेडिसिन और गोटे मेडिसिन जोटा कि टॉक्सिसिटी किसी अच्छी ना किसी टॉक्सिक इफेक्ट और तार किसी साइड इफेक्ट अच्छी ना नहीं ताकू कौन करावे फर्स्ट एनिमल ले टेस्ट करावे देन कौन करावे तार इफेक्ट देखिकी तापर नेकी ताकू ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस करावे सो फॉर केमिकल सेफ्टी और केमिकल टॉक्सिसिटी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड ए सब जगह ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करावे कमाई कहीं नॉर्मल एनिमल अपेक्षा ट्रांसजेनिक एनिमल अपेक्षा डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटीटा अधिक थाए तो फर्स्ट एम कौन करावे ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करावे देन तार इफेक्ट देखिकी और साइड इफेक्ट देखिकी ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस करावे ओके देन सिक्स्थ आसला कौन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कौन करावे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करावे कमाई जदि गोटे नॉर्मल काउ अच्छी ओके तो गोटे नॉर्मल काउ अच्छी सेटा जतिक अमाउंट मिल्क प्रोडक्शन करिवो जदि गोटे ट्रांसजेनिक काउ थिवो काउ जोतरे कि
मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी अधिका अच्छी और गोटे पर्टिकुलर जीन जोटा कि कौन कराई इंट्रोड्यूस कराई मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कराया ऑब्वियसली कौन हम से काउटा मोर मिल्क प्रोडक्शन करवा दैन ए नॉर्मल काउ गोटे नॉर्मल काउ अपेक्षा से काउटा अधिका मिल्क प्रोडक्शन कर सो ए काउ को जदि जने कौन कर यूज करुच्ची फार्मिंग कराया काउ फार्म रे यूज करुच्ची देन ऑब्वियसली तार अधिका फायदा हम देन आउ भी गोटे एग्जांपल हम कौन पिग विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पिग टाक यूज करावे कौन भाई मीट प्रोडक्शन में यूज करावे जदि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइजिंग जीन को नहीं ट्रांसफर कराई पिग ऑब्वियसली कौन पिग रो ग्रोथ टा नॉर्मल पिग अपेक्षा ए ट्रांसजेनिक पिग रो ग्रोथ टा अधिका हम और अधिका अमाउंट ऑफ मीट प्रोडक्शन करबो दैन द नॉर्मल पिग सो इन केस ऑफ एग्रीकल्चर यूज करावे का को ट्रांसजेनिक एनिमल को फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करावे then the last advantages is industrial application in industrial application there is a example in canada रे गोटे इंडस्ट्री से माने करतले कोन they introduce the spider gene into goat तो से माने कौन स्पाइडर फंक्शन है कौन से फॉर्मेशन करे थ्रेड से जो थ्रेड अच्छे से थ्रेड को फॉर्मेशन करे सो दैट थ्रेड सिंथेसाइजिंग जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू गोट तो ऑब्वियसली एबे ट्रांसजेनिक गोट रे जो मिल्क प्रोडक्शन है से मिल्क प्लस सिल्क थ्रेड प्रेजेंट थी सिल्क थ्रेड रो स्मॉल अमाउंट्स प्रेजेंट थाए तो से माने कौन कले मिल्क को सेपरेट कर देले देन थ्रेड को कौन कले थ्रेड जो स्मॉल अमाउंट्स थिला से स्मॉल अमाउंट को नहीं कि से माने कौन कले थ्रेड फॉर्मेशन करेले ताकू रैकेट हला टेनिस रैकेट हला कि नेट फॉर्मेशन कराला ताकू नहीं कि अलगा इंडस्ट्री कले तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एठी गेला कोन गोटे गोट रो जोटे कि से माने ओनली मिल्क प्रोडक्शन करया कथा सेठी से माने स्पाइडर जीन को इंट्रोड्यूस करे कि थ्रेड रो फॉर्मेशन भी करे पारला सो गोटे इंडस्ट्री दीटा जिनस तांको फायदा हला सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हे परंदी किछि बहुत सारा एग्जांपल्स अछि ट्रांसजेनिक फिश जो माने के ग्रोथ हार्मोन थिबो ट्रांसजेनिक शीप हला ट्रांसजेनिक काउ सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ transgenic animals but these are the advantages of a transgenic animal okay so this is all about transgenic animals what are the application of biotechnology in agriculture in the field of medicine and in the field of transgenic animal okay so there are three more terms one is biopatent bioethics and biopiracy so एति जिनस हो गला नेक्स्ट हमको डिस्कशन करार अछि कोन व्हाट इज बायोएथिक्स बायोपैटेंट एंड बायोपायरेसी सो हमको कोन कोन देखियार थिला द थ्री टर्म्स बायोएथिक्स बायोपैटेंट एंड बायोपायरेसी सो ए तीनटा को जिनस हमको कोन कोन डिस्कशन करार अछि एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सो व्हाट इज बायोएथिक्स फर्स्ट देखो एथिक्स कोन गोटे जिनस आम कि गोटे करुचे दैट इज लॉफुल और नॉट से जिनस करने आमर अधिकार अच्छी और नाही दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स सो व्हाट इज एथिक्स a rule of conduct by which a community regulates its behavior and decide as to which is ethical or not as to which is lawful or not को जिनसटा करेक्ट को जिनसटा करेक्ट नुह से जिनसटा को डिसाइड करा दैट इज कॉल्ड एथिक्स सो व्हाट इज बायोएथिक्स जदि गोटे किसी बायोलॉजिकल कंसर्न अच्छी फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी आम किसी गोटे एक्सपेरिमेंट करें गोटे अलग फॉरेन जीन को लेकिन गोटे अलग ऑर्गेनिज्म रे इंट्रोड्यूस करें तो से जिनसा करने और से जिनसा राइट और रॉन्ग इट इज एथिकल और नॉट एथिकल आमको से जिनसा करने अधिकार अच्छी और नाही दैट इज कॉल्ड एज द एथिकल कंसर्न्स तो से एथिकल कंसर्न को रेगुलेट करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ए कम्युनिटी कॉल्ड GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग authorization community so there is a community called GEAC okay genetic engineering authorization community so a community रा function है कौन से माने कौन करती गोटे biological concern अच्छे और गोटे किसी गोटे term चलची और किसी गोटे process चलची से process को
फर्स्ट मैंने देखे कि से जिनसा तुमको कले कि हार्म होना ना को अलग ऑर्गेनिज्म उपर किसी इफेक्ट पड़ुचे ना ना देन से कौन करती प्रोवाइड करती परमिशन दिखती कि जिनसा करने सो व्हाट आर द मेन बायोलॉजिकल कंसर्न और बायो एथिकल concerns so bioethical concern है कौन फर्स्ट वायोलेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेसीज आम कि गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज रे अलग किसी गोटे जीन आनिकी इंट्रोड्यूस करुचे सो से जीनटा ऑब्वियसली कौन हम पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर थिला तार कैरेक्टर चेंज हो गला तो आम जाने गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छी तार किसी कैरेक्टर्स थी बट जब आम अलग जीन किसी गोटे इंट्रोड्यूस करुचे ऑब्वियसली कौन हम से जीन ना से जीन कौन हम क्यारेक्टर से ऑर्गेनिज्म शो कला तो तार पर्टिकुलर क्यारेक्टर जोटा थिला सेटा चेंज हो तो जो गोटे स्पेसीज रो यूनिकनेस अच्छी दैट यूनिकनेस इज लॉस्ट सो द फर्स्ट प्रॉब्लम है कौन वायोलेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेसीज गोटे स्पेसीज जो यूनिकनेस अच्छी तो यूनिकनेसटा लॉस हो जाए देन सेकेंड है इट कॉजेस ग्रेट सफरिंग टू एनिमल गोटे एनिमल नहीं कि प्रोसीजर करुचे आरडीटी प्रोसीजर है से ऑब्वियसली कौन हम से एनिमल उपर इफेक्ट पड़ो से कि सफर हुए से एनिमलटा सो जदि एमती किसी हो देन से कौन करती जीएससी से अप्रूव करती सॉरी सो जीएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी ओके ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन ओके जब आम कौन कहे गोटे ह्यूमन जीन को लेकिन ट्रांसफर करुचे कि गोटे एनिमल तो आम पर्टिकुलर किसी क्यारेक्टर अच्छे बोली आम कौन कहे ह्यूमन बोली कहे जदि ह्यूमन जीनटा को लेकिन किसी गोटे अलग ऑर्गेनिज्म ट्रांसप्लांट कराला ऑब्वियसली से क्यारेक्टरटा से ऑर्गेनिज्म शो करिवो दैट विल डाइल्यूट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस जो गोटे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस अच्छी कि पर्टिकुलर क्यारेक्टर रहिला तो ह्यूमन हम जदि आम ह्यूमन क्यारेक्टर को लेकिन और ह्यूमन जीन को आउ गोटे ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करें दैट विल डाइल्यूट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस देन व्हाट इज द थर्ड कंसर्न है कौन रिड्यूसिंग द स्टाटस ऑफ फैक्ट्री आम जदि कौन करा जो फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स अच्छे फार्मास्यूटिकल प्रोटीन फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जोटा कि एम्फीसेमा को क्योर करने यूज करावे ओके जदि से प्रोटीन गुड़ाक आम कौन करचे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करचे ट्रांसजेनिक एनिमल तो ऑब्वियसली कौन हम जो फैक्ट्री से गुड़ाक फॉर्मेशन करते से फैक्ट्री स्टाटसटा रिड्यूस हो सो दैट विल बी ए प्रोब्लेम देन नेक्स्ट है कौन रिस्क टू बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट तो बायोडाइवर्सिटी है कि एनवायरनमेंट है तापर को भी किसी रिस्क आसीपे देन लास्ट ला कौन इट इज डिसरेस्पेक्टफुल टू एनिमल्स जेहेतु आम एनिमल को ओनली यूज करते एक्सप्लोइट करचे एनिमल को ओनली एक्सप्लोइट करचे कौन करने ह्यूमन यूज पाई दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल टू एनिमल्स सो दीज आर द बायो एथिकल कंसर्न्स जदि यही सब जिनस कि गोटे अच्छी तो यही सब जिन को फास्ट स्टडी करती कौ मैंने जीएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ओके तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी काम है कौन से फास्ट देखते जे यही सब जिनस गोटे एक्सपेरिमेंट रे होउची ना नहीं और यही सब प्रोब्लेम्स आसुचे ना नहीं जदि यही सब प्रोब्लेम्स नाही देन से कौन करती प्रोवाइड करती कौन करती अलाउ करती से एक्सपेरिमेंट को करने ओके सो दिस इज कॉल्ड बायो एथिक्स देन व्हाट इज बायो पैटेंट और व्हाट इज ए पैटेंट is a set of exclusive right by a state to an inventor to prevent others from the commercial use of his invention जदि गोटे लोक कौन कर गोटे नुआ जिन इनवेंट कर फॉर एग्जांपल किसी गोटे स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि किसी गोटे नुआ प्रोसीजर है किसी भी गोटे जिन यूज करे तो कौन करावे से कौन करे गोटे पैटेंट क्लेम करे और गोटे राइट क्लेम करे कि तार कमर्शियल यूज ताकू गोटे अलग जगह को पठेबा कि तार किसी गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा तार कमर्शियल यूज ओनली से आउ तार कंपनी ही कर दैट इज कॉल्ड एज पैटेंट बट व्हेन पैटेंट इज गिवन टू ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो गोटे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट गोटे पैटेंट दिखाई देन दैट इज कॉल्ड एज बायो पैटेंट तो को प्रोडक्ट बायो पैटेंट दि जाए फॉर ए सेल लाइन और ए न्यू स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी गोटे नुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन है कि किसी गोटे डीएनए सीक्वेंस हो और किसी गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो यही सब जिन किसी जन कौन कर नुआ बाहर कर पैटेंट क्लेम करे दैट मीन्स ता पाखरे राइट अच्छी दे सी ही ओनली तार कमर्शियल यूज कर आउ जदि को कंपनी यूज करुच्ची पैटेंट राइट थाई कि जदि आउ गोटे कंपनी यूज कला देन से कौन करेंगे लीगल एक्शन नहीं पारे सो दिस इज कॉल्ड बायो पैटेंट और बायो पैटेंटा को जिन दि जाए
करो को इन्वेंशंस पाई सेल लाइन हो कि किसी गोटे स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस और बायोलॉजिकल प्रोसेस ओके तो पैटेंट राइट रा एडवांटेजेस कोन तमे यदि किछ गोटे नया जिंस इन्वेंट करछ माने ताकू आउ जने के नै कि एक्सप्लॉइट करि परिबेनी ओके तो ताकू के जने कि यूज करी कि ताठू फायदा पाई परिबेनी सो देयर आर सम एग्जांपल्स The patent for basmati rice was owned by the company Rice Tech Company in September 1997. There are different strains of basmati rice. Basmati rice ର बहुत सारा strain अछि तो basmati rice तार use और तार commercial use तार सही strain को नेकी किसी experiment करबा that patent is owned by Rice Tech Company in September 1997. Okay, and the second example turmeric patent for turmeric or the wound healing property of turmeric that patent is given to the University of Mississippi Medical Center in May 1995 by US Patent Office टर्मरिक रो जो वुंड हीलिंग कैपेसिटी अछि सेटा को यूज करा पे और तारा कमर्शियल यूज पई फर्स्ट यूएस पेटेंट ऑफिस कहा को पेटेंट हैंड ओवर करतले टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर इन मे 1995 बट लैटर एन इंडियन साइंटिस्ट को गले जेहेतु टर्मरिक रो यूजटा नॉर्मली इंडिया रे बहुत आगुर हे आसी बहुत पूर्वरु से कौन गले पैटेंट को रिवोक करया पे क्लेम कले देन से माने कौन गले कंसर्न परे से पैटेंट को रिवोक करायतला देन नीम पैटेंट फॉर नीम is granted to India in 1996 so टर्मरिक आउ नीम ए दिटाकर पैटेंट कहा को मिलची इंडिया को सो दैट इंडिया रो कोबी कंपनी ए दिटाकर ओन डीलिंग हो तारा कमर्शियल यूज हो तो से माने सेटा को करि परबे सो देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ बायो पैटेंट वन इज टाइम लिमिट द टाइम लिमिट इज 7 to 14 years तो गोटे पैटेंट जन को दिया है गोटे राइट दिया है माने गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पई तो टाइम लिमिट इज 7 to 14 years 7 रु 14 वर्ष ता भितरे ही से माने कोन कर पारे जदि सेही दिस के यूज माने अलगा को कंपनी फॉर्मेशन कोची देन से माने तापर लीगल एक्शन नै परबे जदि पैटेंट टा कोन अछि सॉरी जाई छी 14 years हे गला देन तापर आ के यूज करे माने ता किछि कहि परबेनी एंड द सेकंड लिमिटेशन इज टेरिटोरी टेरिटोरी मीन्स कोन गोटे पर्टिकुलर कंट्री रे जदि गोटे पर्टिकुलर कंट्री अछि देन नेक्स्ट कंट्री जदि आ गोटे को कंट्री सेटा यूज कोछि देन से माने भी ता ऊपर किछि लीगल एक्शन नै परबनी सो दीस आर द टू लिमिटेशन वन इज टाइम एंड वन इज टेरिटोरी सो दिस इज अबाउट पैटेंट का को दिया जाए बायो पैटेंट कोन व्हेन पैटेंट इज गिवन फॉर ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट गोटे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे जदि गोटे पैटेंट दिया होछि देन दैट इज कॉल्ड एज बायो पैटेंट कहा पे बायो पैटेंट इश्यू करा जाय परिबो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो पैटेंट देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बायो पैटेंट देन देयर इज वन टर्म कॉल्ड बायोपाइरेसी मीन्स कोन जदि जनक पाखरे पैटेंट अछि बट तार कोन परमिशन बिना आउ जणे कोन करूची से जिंसटा को यूज करूची और ताको एक्सप्लॉइट करूची देन दैट इज कॉल्ड एज बायोपाइरेसी नॉर्मली को केस रे जदि गोटे कौन अच्छी हाईली एडवांस कंट्री अच्छी बट ता पाखरे बायो रिसोर्स कम अच्छी एडवांस कंट्री अच्छी बट बायो रिसोर्स कम रहा देन से माने कौन करि परिबे जो एरिया रे और जो कंट्री रे कौन अच्छी बायो रिसोर्स अधिका अच्छी से माने सेटू बायो रिसोर्स नहीं आसंती तांको एमानकर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करंती आ ताको एक्सप्लोर करते तार यूज करंती तो ऑब्वियसली कम जो जगह रे बायो रिसोर्स अच्छी से मानक पाखरे सेतिकी नॉलेज नाही तो से माने कोन करबा तो तांकर जो ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी से माने सेतिकी रहि जिवे से माने ताको कोन करबारनी अधिका किछि डेवलप करबारनी एबो ताकर लॉस होय सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइरेसी रो मीनिंग हला कोन पाइरेसी रो मीनिंग होची robbing at the sea so dictionary meaning of piracy is robbing at sea so what is biopiracy robbery of biological product from a country with patent right गोटे कंट्री रो जदि patent right अछि बट आउ जने कोन कोछि ताको यूज कोछि then that is called as biopiracy okay so there is one example in West African countries there is a particular plant
called Pentadiplandra brasiliana. Pentadiplandra brasiliana. So this plant forms, from this plant they extract a protein called brazain protein. This protein is 2000 times sweeter than sugar. So this is a low calorie sugar. Okay, तो गोटे प्लांट रहा पेंटाड्रिप्लांड्रा ब्राजियाना दैट फॉर्म ए प्रोटीन से प्लांट रो से कौन करती इन वेस्ट आफ्रिकन कंट्रीज तार जो लोकल लोक मैंने रही से कौन करती फॉर्मेशन करती कौन प्रोटीन फॉर्मेशन करती दैट इज कॉल्ड ब्राजेइन प्रोटीन से ब्राजेइन प्रोटीन ना कौन दैट इज ए लो कैलोरी स्वीटनर नॉर्मली लो कैलोरी स्वीटनर से कैलोरी बहुत कम अच्छी बट दैट इज 2000 टाइम्स स्वीटर दैन सुगर तो से कौन कहती ट्रेडिशनल वे रे से एक्सट्राक्ट करती तार जो बेरी रहा से बेरी रू एक्सट्राक्ट करती प्रोटीन को आताकू एक्सपोर्ट करती डिफरेंट कंट्रीज को बट व्हाट यूएसए हैज डन यूएसए रे कौन कले दे आइडेंटिफाइड द पर्टिकुलर जीन से पेंटाडिप्लांडा ब्राजियाना प्लांट रू से कौन कले एक्सट्राक्ट कले दैट ब्राजेइन सिंथेसाइजिंग जीन जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन टाक से एक्सट्राक्ट कले से प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन को एक्सट्राक्ट करके इंट्रोड्यूस कले कौन मेज प्लांट रे इंट्रोड्यूस कले ओके तो ऑब्वियसली कौन हम मेज प्लांट रे मेज सहित कौन रे प्रोटीन ही प्रेजेंट रही देन से कौन करे ऑब्वियसली मेज टा जेतु नॉर्मली प्रोड्यूस हो पार मेज टारू से कौन कले एक्सट्राक्ट करदे ब्राजेइन प्रोटीन को आउ यूज कले एज ए स्वीटनर तो ये लॉस है कहार वेस्ट आफ्रिकन कंट्रीज जो मैंने रही से कौन कले ट्रेडिशनल प्रोसेस रे बाहर करते पाखे से टेक्नोलोजी ना तो जेहेतु से कौन करते ट्रेडिशनल वे से जिनसा को बाहर करते कौन है लॉस होगा से बहुत टाइम लगे बाहर करने बट ये यूएसए कौन गला जीन टाक एक्सट्राक्ट करके नहीं आसला देन मेज प्लांट इंट्रोड्यूस करके इजिली एक्सट्राक्ट करदेला प्रोटीन को सो दिस इज कॉल्ड बायोपाइरेसी गोटे जगार बायो रिसोर्स तार ट्रेडिशनल नॉलेज से पाखे प्रेजेंट अच्छी बट गोटे हाईली एडवांस कंट्री कौन कर से जगार बायो रिसोर्स को नहीं आसला ताकू टेक्नोलोजी यूज करके टेक्नोलोजी यूज करके एक्सप्लोइट कर सो दैट इज कॉल्ड एज बायोपाइरेसी नॉर्मली बायोपाइरेसी हुए क्या भितर गोटे गोटे कंट्री अच्छी जो मान पाखे बायो रिसोर्स अधिका अच्छी ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी बट से एडवांस नॉलेज ना बट गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री अच्छी जो मान पाखे हाईली एडवांस टेक्नोलोजीज अच्छी तो जो मान पाखे टेक्नोलोजी थाए से कौन करती बायो रिसोर्स को एक्सप्लोइट करती देन यूज करती दैट इज कॉल्ड एज बायोपाइरेसी सो दिस इज द लास्ट 3 टर्म्स bioethics biopatent and biopiracy with this the complete chapter is finished the chapter biotechnology. Thank you.